Hello viewers, welcome to ICSC Board Class 10 Chemistry episode 10.4. In the previous episode we have seen about the preparation of methane, its chemical characteristics, physical characteristics, some important conversions and the uses of methane. In this session we are going to talk about ethane gas. So let us see first of all the preparation. Let me tell you one thing before we go for the preparation, that ethane gas is a second member of the alkane homologous series because it contains two carbon atoms surrounded by the six hydrogen to form single covalent bonds. Okay, preparation of ethane gas. The preparation of methane and preparation of ethane is nearly similar. Only the thing is chemical required is different. In that one we have used sodium acetate. Here we are going to use sodium propionate. But the method is going to remain same. Even the collection of the ethane gas is done by the downward displacement because it is insoluble in water. Another method of preparation of ethane gas is what? By ethyl iodide by reduction method. Same thing that what we have studied in the methane gas. Here also we are going to use ZnCu couple where nascent hydrogen gas is obtained, which is reducing the ethyl iodide into ethane. So here sodium propionate is converted to ethane by soda lime and heating up. And in the second method, reduction is taking place. Reduction of ethyl iodide is taking place with the help of ZnCu couple, where it is going to form nascent hydrogen. So ethyl iodide is reduced to ethane and it is collected in by the downward displacement of water because it is insoluble in water. Let us move to the physical properties. It does not have color, odor and taste. That means it is colorless, odorless and tasteless. Ethane is non-polar covalent compound and therefore it is insoluble in water but soluble in organic solvents like acetone. वेपर डेंसिटी कितना है उसका 15. दैट मीन्स इट इज स्लाइटली हैवियर देन एयर, यानी कि कितना होगा उसका 14.4 है एयर का और इसका क्या होगा, इसका 15 है तो फिर वो थोड़ा सा ज़्यादा है. इट इज स्लाइटली हैवियर देन द एयर. ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेन सेम एज दैट व्हाट वी हैव स्टडीड इन द मीथेन. कंबस्टिबिलिटी, अगर उसको ज़्यादा ऑक्सीजन के अंदर बर्न करते हो, गर्म नहीं करना है, हीट नहीं करना है, बर्न करना है, तो पेल ब्लू फ्लेम मिलेगी. तो दिस इज ऑल्सो थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. दिस इज ऑल्सो 1 मार्क क्वेश्चन एंड अलॉन्ग विद दैट वन यू नीड टू रिमेंबर द इक्वेशन. अगर सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नहीं होता है तो क्या बनेगा? तो सिंपल, किसी भी कोई भी चीज़ आप जलाते हो तो अगर अब ऑक्सीजन नहीं दोगे तो that substance will burn, but it will, in the absence of oxygen, it will not convert into complete combustion as carbon dioxide, but it will form carbon monoxide. तो यहाँ पर भी ऐसा होगा कि भाई इथेन के अंदर अगर आप इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर डालते हो और उसको जला रहे हो तो ऑक्सीजन मिल रहा है लेकिन इनसफिशिएंट सप्लाई, तो यानी कि वो कार्बन मोनोक्साइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा. कार्बन डाइऑक्साइड कब बनेगा? जब एक्सेस ऑफ एयर होगा तब. यहाँ पे तो हम सप्लाई कम कर दिया ऑक्सीजन का तो कार्बन मोनोक्साइड बन रहा है. ये भी पॉल्यूशन फैलाने वाला है अगर ऐसा होगा तो. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सेम थिंग. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने मीथेन में पढ़े थे तो यहाँ पर भी है. वहाँ पे मोनोक्लोरो मीथेन मिल रहा था, यहाँ पे मोनोक्लोरो इथेन मिलेगा. प्रोसीजर भी सेम टू सेम, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है यहाँ पर. ये लेकिन यहाँ वहाँ पर सिर्फ चार हाइड्रोजन थे तो 4 क्लोरीन को हम सेटिस्फाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो 6 हाइड्रोजन है तो हम 6 क्लोरीन को हम अंदर सब्सटीट्यूट करवा सकते हैं. इसलिए पहला देखो तो मोनोक्लोरोइथेन, डाइक्लोरोइथेन, ट्राइक्लोरोइथेन, टेट्राक्लोरोइथेन, पेंटाक्लोरोइथेन एंड हेक्साक्लोरोइथेन. तो यानी कि यहाँ पर जो है मीथेन में क्या हो रहा था, एक कार्बन के पास 4 था, ये क्या हो गया हमारा मीथेन. और इथेन के पास कैसा है, इस तरह का है. तो यहाँ पे हम क्लोरीन बिठा सकते हैं, यहाँ पे, यहाँ पर और यहाँ पर, यानी कि 4 क्लोरीन बिठा सकते हैं. दैट इज इन मीथेन, राइट. बट हियर यहाँ पे एक क्लोरीन, यहाँ पे एक क्लोरीन सब्सटीट्यूट करवाया, यहाँ पे करवाया, यहाँ पे करवाया, यहाँ पर करवाया और यहाँ पे करवाया, यानी कि टोटल कितने क्लोरीन करवाए? 6 क्लोरीन हमने करवाए, इसलिए वो 6 तक ही जाएगा. दैट्स वाई द लास्ट वन इज व्हाट, हेक्साक्लोरो इथेन. I hope you understood. Let us move on to the next one, catalytic or controlled oxidation. Same sort of a method. See, कितना वॉल्यूम लेना है, वहाँ पर भी 9, वहाँ पर भी 9:1 था, यहाँ पर भी 9:1 है, यानी कि ये 9 और ये 1 कहाँ से पास करना है? कॉपर में से. कितने टेम्परेचर पे? 200 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे. क्या मिलेगा? अल्कोहल मिलेगा, यानी कि इथाइल अल्कोहल मिलेगा या तो इथेनॉल मिलेगा, राइट. अगर हमने
स्टॉप नहीं करवाया, रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप नहीं करवाया, तो आगे बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा तो क्या मिलेगा, अगर आगे बढ़ता गया देन इट विल ऑब्टेन व्हाट, अपने ऑक्सीजन पास कर रहे हो, ऑक्सीजन को जाने देते हो, ऑक्सीजन इज एंटरिंग, ऑक्सीजन इज एंटरिंग, तो फिर क्या होता रहेगा, इथेनॉल जो बन रहा है वो भी कन्वर्ट होता जाएगा किस में, एसिटाल्डिहाइड में। और अगर ज़्यादा गया तो क्या बन जाएगा, अगर ज़्यादा गया सो दैट इज़ व्हाट इट इज़, कि भाई इथेन excess of oxygen in the presence of copper at temperature 200 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इथेनॉल इज प्रोड्यूस, एक्सेस चल रहा है तो एसिटाल्डिहाइड, एक्सेस चल रहा है तो एसिडिक एसिड में कन्वर्ट हो गया CH3COOH में। अगर मुझे डायरेक्टली चाहिए, जैसे कि उसमें भी हम डायरेक्टली यूज़ करते थे, अगर मुझे डायरेक्टली चाहिए देन आई एम यूजिंग द कैटालिस्ट मोलिब्डेनम ऑक्साइड, कितने टेम्परेचर के ऊपर, 350 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड, डायरेक्टली इथेन जो है इथेनॉल्डिहाइड में यानी कि एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेट अस सी द कन्वर्जन्स हियर, सेम थिंग जो हमने आगे पढ़ लिया है वो सब इसी में सेम टू सेम आ जाता है। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी आप देखोगे तो इथेन से इथाइल अल्कोहल, सेम इथाइल अल्कोहल बनने के लिए कितना स्टेप रिएक्शन, दिस इज फर्स्ट स्टेप एंड दिस इज सेकंड स्टेप, यानी कि इथाइल अल्कोहल तो बनाना ही है, और इथाइल अल्कोहल में से हम एसिटिक एसिड बना सकते हैं, हम इथाइल अल्कोहल में से एसिटिक एसिड बना सकते हैं। वंस अगेन इथाइल अल्कोहल बनाने के लिए मुझे इथेन को क्लोरीन के पास सनलाइट के अंदर से पास करना है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में से पास करना है, तो क्या बनेगा, इथाइल क्लोराइड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, क्लोरीनेशन वाला रिएक्शन है, और उसमें से क्या बन रहा है, इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल के दो सब कंपाउंड्स बना सकते हैं इथाइल अल्कोहल में से। अगर मैंने कंडीशन ये रखी कि एसिडिफाइड K2Cr2O7 नेसेंट ऑक्सीजन के जरिए, तो क्या बन जाएगा, एसिडिक एसिड बन जाएगा। और कंडीशन मैंने ये रखा कि भाई मुझे कॉपर 2 ऑक्साइड 300 डिग्री सेंटीग्रेड में पास करना है, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा। दैट मीन्स कॉपर 2 ऑक्साइड इज एक्टिंग एज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड दिस इज एक्टिंग एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस तरह का जो हमने पहले पढ़ा था वो सेम टू सेम यहाँ पर भी है, सिर्फ मीथेन की जगह पे इथेन आता है, और उसके जो प्रोडक्ट्स है उसके अंदर मिथाइल क्लोराइड की जगह पर इथाइल क्लोराइड, मिथेनॉल की जगह पर इथेनॉल, मिथेनॉल्डिहाइड के सामने एसिटाल्डिहाइड, फॉर्मिक एसिड के सामने एसिडिक एसिड, बाकी का तो सेम टू सेम रिएक्शंस सेम टू सेम है। लेट अस मूव ऑन टू द शॉर्ट फॉर्म ऑफ दिस कन्वर्जन्स। तो मैंने यहाँ पे क्या एकदम इजी बना दिया, देखो पहले इथेन को क्लोरीन और सनलाइट में से पास किया तो क्या बनेगा, इथाइल क्लोराइड। क्या रिएक्शन का नाम क्या है, क्लोरीनेशन या तो सब्स्टिट्यूशन। इथाइल क्लोराइड के अंदर हम एक्वेस KOH डाल रहे हैं तो इथाइल अल्कोहल बनेगा, क्या कहलाएगा, हाइड्रोलिसिस। इथाइल अल्कोहल को कहाँ भेजना है, अगर आप कॉपर 2 ऑक्साइड 300 डिग्री सेंटीग्रेड कैटालाइटिक रिएक्शन में माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, तो उसमें से भेज रहे हो तो क्या बनेगा, एसिटाल्डिहाइड बनेगा। अगर आप K2Cr2O7 एसिडिफाइड, ये एसिडिफाइड है क्योंकि एसिड आता है उसके अंदर, ये H2SO4 एसिड है, तो नेसेंट ऑक्सीजन के जरिए ऑक्सीडाइज हो जाएगा। K2Cr2O7 क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो क्या बना देगा, एसिडिक एसिड बना देगा। सो दिस इज़ द ईजिएस्ट वे टू रिमेंबर। तो वो जो पहले जो हमने पढ़ा था वो सेम टू सेम फॉर द इथेन ऑल्सो सेम टू सेम है। लेट अस मूव ऑन टू द यूजेज ऑफ इथेन। यूजेज, इथेन का यूज़ कहाँ पे आता है, तो क्या इंडस्ट्रीज़ में आता है, ऑटोमोबाइल्स में कभी कभी कोई ऐसा ऑटोमोबाइल होगा तभी, बाकी तो इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उसका कैलोरीफिक वैल्यू हाई है। और ऑक्सीजन में वो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर बनाएगा। अगर ऑक्सीजन नहीं मिला तो क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, वो तो पॉल्यूशन कर देगा। इथेन क्या बनाने के लिए काम आता है, इथेनॉल बनाने के लिए काम आता है, एसिडाल्डिहाइड बनाने के लिए काम आता है, एसिडिक एसिड, इट इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग एसिडिक एसिड। सो दिस इज अल्कोहल, दिस इज एसिडाल्डिहाइड, दिस इज एसिडिक एसिड जिसका नाम है विनेगर। और साथ में किस में बनाने के लिए काम आता है, पेंट्स, इट इज यूज फॉर मेकिंग पेंट्स, वार्निशेस, एडेसिव्स, मैन्युफैक्चर ऑफ प्लास्टिक्स एंड आर्टिफिशियल फाइबर। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, दिस इज ऑल अबाउट इथेन। हमने उसके पहले वाले में क्या देखा था, मीथेन। ये सब किसके बारे में है, इथेन के बारे में है। आई होप यू अंडरस्टूड। डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, देन प्लीज mention it in the comment box, and I hope you like the video. It is very much easy. I try to make it easy according to our 10th ICSE board syllabus. Thanks very much guys. I'll see you in the next session.